The neuron type present in the mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve is what kind? It is unipolar type of neurons. The mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve is unique because it is the only place within the central nervous system where the primary sensory neurons are located inside the CNS instead of the peripheral ganglion. लेकिन बाकी जगह जो peripheral ganglion में located होते हैं. These neurons are unipolar, also having a true unipolarity, having only one of the following processes that divides into the central and peripheral branches. This single process serves as both the axon and the dendrite in function, transmitting the proprioceptive information from the muscles of mastication, that is teeth and jaw, to the brainstem. Okay. Next, the straight sinus is located at which anatomical junction? Straight sinus कहाँ पे located होता है? The straight sinus is located at attached margin of the falx cerebri with tentorium cerebelli. ठीक है, attached margin of the falx cerebri with the tentorium cerebelli. There are three important venous sinuses that are present in relation to falx cerebri fold. The superior sagittal sinus that lies along the upper margin, the inferior sagittal sinus that lies along the lower margin, and the sagittal sinus along the line of the attachment of the falx cerebri to the tentorium cerebri. Next, a 45-year-old adult presents with enlargement of hands, feet and jaw. 45-year-old adult है, enlargement of hands, feet and jaw हो गया. ठीक है. लेबोरेटरी टेस्ट रिवील्ड एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन लेवल्स. लेबोरेटरी टेस्ट में उसके ग्रोथ हार्मोन लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं. MRI shows pituitary tumor with which pituitary cell type is most likely to be involved in this test या फिर in this disease. इसमें सबसे ज़्यादा आपके एसिडोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एसिडोफिल्स और दे आर ऑल्सो नोन एज इयोसिनोफिल्स. एसिडोफिल या फिर इयोसिनोफिल एक ही नाम है. दीज आर एडिनोमास दैट सिक्रीट्स. इनके साथ इन्वॉल्व हुए एडिनोमास सिक्रीट एक्सेस ग्रोथ हार्मोन्स कॉजिंग एक्रोमेगैली इन द अडल्ट्स एंड जाइजेंटिज्म इन चिल्ड्रन. अगर बेसोफिल्स इसकी जगह इंक्रीज कर जाएं, ठीक है, पिट्यूटरी सेल टाइप में बेसोफिली का अगर इंक्रीज कर जाएं तो इट विल लीड टू कुशिंग सिंड्रोम. अगर क्रोमोफोब इंक्रीज कर जाएंगे तो इट विल लीड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म. क्रोमोफोब, हाइपोपिट्यूटरिज्म, बेसोफिल, कुशिंग सिंड्रोम. एसिडोफिल्स, एडिनोमास जो कि जाइगेंटिज्म कर देंगे. पोस्टीरियर लोब का अगर डैमेज हो जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा. इफ द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी विल बी डैमेज, दैट विल लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस. नेक्स्ट, द ओनली स्पाइनल गैंग्लियन लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियल कैविटी इज व्हाट? एक ही सिंगल स्पाइनल गैंग्लियन है जो कि क्रेनियल कैविटी के इनसाइड होता है, दैट इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. The sensory ganglion, that is the fifth cranial nerve ganglion, it is homologous with the dorsal nerve root of the ganglia of the spinal nerves. All such ganglia are made up of pseudo unipolar nerve cells. जितने भी गैंग्लिया होते हैं वो pseudo unipolar nerve cells से बने होते हैं with T-shaped arrangement of their processes. One process arises from the cell body which divides into central and peripheral processes. The ganglion is crescentric or semilunar in shape with its convexity directed towards anterolateral direction. Only the spinal ganglia present in the cranial cavity is the trigeminal ganglion that is present inside the cranial cavity. ठीक है. Next, spread of infection or thrombus from the sigmoid or transverse sinuses may impair CSF drainage into what sinus? ठीक है, तो इसमें सुपेरियर सैजिटल साइनस की बात आ जाती है कि अगर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन या थ्रोम्बस सिग्मॉइड या ट्रांसवर्स साइनस से हो जाती है तो ये इम्पेयर कर देती है CSF ड्रेनेज इनटू द सुपीरियर सैजिटल साइनस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर्ड साइनस? पेयर्ड साइनसेस के बारे में बात करेंगे. स्पिनोपैरेटल साइनस इज अ पेयर्ड साइनस. पीट्रोस्क्यूमस साइनस पेयर्ड साइनस. सिग्मॉइड साइनस पेयर्ड साइनस. ये तीनों साइनसेस जो हैं वो पेयर्ड साइनसेस है. ठीक है, नॉट अ पेयर्ड साइनस इज सुपीरियर सैजिटल साइनस. ओके, दो तरह के साइनसेस होते हैं हमारे पास. ठीक है, पहला आता है पेयर्ड वीनस साइनसेस. देयर इज ओनली वन ऑन ईच और राइट एंड लेफ्ट साइड. ठीक है, दीज आर मतलब पेयर्ड वीनस साइनसेस. एक लेफ्ट साइड पे होगा, एक राइट साइड पे होगा. कैवर्नस साइनस है, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस है. कैवर्नस, सुपीरियर पेट्रोजल, इंफीरियर पेट्रोजल, तीनों के. ट्रांसवर्स सिग्मॉइड स्फीनोपैराइटल. ट्रांसवर्स सिग्मॉइड स्फीनोपैराइटल. फिर उसके बाद आता है पेट्रोस्क्वेमस, उसके बाद आता है मिडल मेनिंजियल. पेट्रोस्क्वेमस और मिडल मेनिंजियल जो लास्ट में ऑप्शन दिया हमने. ठीक है, अब बात आती है अनपेड वीनस साइनसेस के बारे में. अनपेड वीनस साइनसेस आर मीडियन इन पोजीशन. बीच में होते हैं ये कहीं ना कहीं और एक होता है ये. ठीक है, दीज आर सुपीरियर सैजिटल साइनस, इंफीरियर सैजिटल साइनस. सुपीरियर, इंफीरियर सैजिटल साइनस, अनपेड वीनस साइनसेस. फिर स्ट्रेट साइनस, ऑसिपिटल साइनस. स्ट्रेट साइनस, ऑसिपिटल साइनस, अनपेड वीनस साइनसेस. फिर एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस एंड पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस, unpaired venous sinuses. Anterior intercavernous and posterior intercavernous sinus, unpaired venous sinuses. फिर basilar plexus of Mainz.
Basilar plexus of veins is also unpaired venous sinuses. Next, identify the marked structures that are given below in the image. Okay. एक इमेज दे रखी है और इसमें लेबल करने को बोला हुआ है. इट इज़ अ कॉर्नल सेक्शन थ्रू द मिडिल क्रेनियल फोसा शोइंग द रिलेशंस ऑफ द कैवर्नस साइनस. ठीक है, तो इसमें साइड्स में हमारे पास जो नर्व्स हैं उसको 1 2 3 4 में लेबल करना है. ऑक्यूलोमोटर पहली है, ट्रॉक्लियर दूसरी है, ऑप्थेल्मिक नर्व इज थर्ड एंड फोर्थ इज मैक्सिलरी. ऊपर से नीचे को आते जाएंगे तो फर्स्ट विल बी ऑक्यूलोमोटर, देन ट्रॉक्लियर, देन ऑप्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी नर्व. ठीक है, ये बार बार डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तभी होगा. नेक्स्ट, मैकल्स केव is formed by evagination of which layer? Meckel's cave, it is formed by evagination of the inferior layer of tentorium cerebelli. ठीक है, the Meckel's cave or the trigeminal cave is a recess of dura mater present in relation to the attached margin of the tentorium. It is formed by evagination of the inferior layer of the tentorium over the trigeminal impression on the petrosal temporal bone. It contains the trigeminal ganglion. ठीक है, lateral surface of the superficial part of submandibular gland is related to what? Lateral surface of the superficial part of submandibular gland, it is related to facial vein. ये इमेज दे रखी है हमारे पास. ठीक है, इसमें medial pterygoid muscle है, facial artery है, superficial lamina of investing layer of deep cervical fascia दे रखा है. The superficial part of the submandibular gland is related to the facial vein. Okay. Next, chorda tympani nerve carries taste sensation from anterior 2/3 of the tongue except from what? Where? ठीक है, कॉर्डा टिम्पनी कहाँ से कैरी करती है? सबसे पहले सेंसेशन फ्रॉम द टंग. फिलीफॉर्म पैपिले से करती है, फंजीफॉर्म पैपिले से करती है और माइक्रोविलाई से करती है. दे आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. ओके, बट इट डज नॉट कैरी फ्रॉम द वैलिड पैपिले. Okay, the lingual nerve it's itself a sensory to anterior 2/3 of the tongue and inner lingual surface of the gums, but its contents fibers belonging to the chorda tympani nerve carry taste sensations from anterior 2/3 of the tongue except from the valid papillae. Next, structures passing deep to posterior border of hypoglossus from above to downward are what? ठीक है, posterior border of the hypoglossus से ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स जो है, तो इसमें पूरा का पूरा एक डायग्राम दे रखा है. ठीक है, of the structures that are passing. तो सबसे पहले आता है glossopharyngeal nerve, फिर stylohyoid ligament, फिर lingual artery. में इस practicing diagram. Okay, क्या नहीं है इसके अंदर? Structures passing deep to posterior border of hypoglossal nerve from above to downwards are glossopharyngeal nerve, stylohyoid ligament, lingual artery. But stylohyoid artery नहीं होती है. Alright, stylohyoid artery is not included in these structures. Next, most commonly damaged artery during the surgical removal of submandibular gland is which artery? सबसे ज़्यादा commonly damaged artery during the surgical removal of submandibular gland is the facial artery. Next, the muscles in the submandibular region form 4 muscle planes. Submandibular region में जो muscles होते हैं वो 4 muscular planes बनाते हैं from superficial to deep. One among these is not a muscle of third muscular plane. ठीक है, जो मस्कुलर प्लेन है उसमें जीनियोहायोइड आता है, हायोग्लॉसस आता है, स्टाइलोग्लॉसस आता है, 3 आते हैं. ठीक है, फर्स्ट मस्कुलर प्लेन बनाते हैं. दीज आर फॉर्म्ड बाय द मसल्स ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड. फर्स्ट मस्कुलर प्लेन बाय डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड. सेकंड मस्कुलर प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द माइलोहायोइड मसल. थर्ड मस्कुलर प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द जीनियोहायोइड मसल, हायोग्लॉसस मसल एंड स्टाइलोग्लॉसस मसल. फोर्थ मस्कुलर प्लेन इज फॉर्म्ड बाय जीनियोग्लॉसस एंड अ पार्ट ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ pharynx. Fourth muscular plane is formed by genioglossus and a part of superior constrictor of pharynx. लेकिन माइलोहायोइड का नाम इसमें कहीं नहीं आता है. ठीक है, there is geniohyoid, there is hyoglossus, there is styloglossus. तो माइलोहायोइड will be our wrong answer. ठीक है, जिसको हमने rule out करना है. Next, from the picture of all germ layers were involved and were recognized as oropharyngeal teratoma. It was a oral pharyngeal teratoma. बेबी की पिक्चर है ये. ठीक है, टेरेटोजन से ये बेबी जो है वो खराब हो चुका है. Okay, now the source of this could be what? Teratomas are tumors of disrupted origin or disputed origin that often contain a variety of tissues such as bone, hair, muscle, gut, epithelia. It is thought that these tumors arise from the pluripotent stem cells and that can differentiate into any of the 3 germ layers or their derivatives. Some evidence suggests that primordial germ cell layers that have strayed from their normal migratory paths could be responsible for some of these tumors. Another source say that maybe the epiblastic cells that give rise to all 3 germ layers during gastrulation is the reason behind it. ठीक है, लेकिन ये टेराटोमा का रीज़न पूछ रहा था खाली, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है उसमें प्रीमोडियल जर्म सेल और एपीब्लास्ट सेल वो दोनों ही इंक्लूडेड है. हाइपोब्लास्ट सेल इंक्लूडेड नहीं होता. ओके, हाइपोब्लास्ट सेल इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सोर्स ऑफ टेराटोमा. नेक्स्ट, द पिक्चर इज ड्यू टू व्हाट? ये हमारे पास बच्चे की पीठ पे एक एब्सेस जैसी बनी हुई दिखाई दे रही है. ठीक है, this is due to what? It is due to the neural tube defect.
ओके, न्यूरल ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से ऐसा ऐसा बनता है. The spina bifida is a condition that is known as in the picture and its occurrence due to failure of closure of neural tube. जब neural tube जो है fail हो जाती है to close, तब ये condition जो हमारी बन के आती है. If the neural tube fails to close in the cranial region, then most of the brain cells or the most of the brain fails to form and the defect is known as encephalopathy. ठीक है, या spina bifida. Next, highlighted nerve supplies what? इसमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और उसमें पूछा कि हाईलाइटेड नर्व क्या सप्लाई कर रही है. हाईलाइटेड नर्व है हमारे पास, इट इज सप्लाइंग द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक nerve to mylohyoid arises from the inferior alveolar nerve before it enters into the mandibular canal. It pierces the sphenomandibular ligament to reach the mylohyoid groove. It supplies mylohyoid, anterior belly of digastric muscle. दो सप्लाई करती है, mylohyoid and anterior belly of digastric muscle. Next, the ligament is attached to what? लिगामेंट मार्क करा हुआ है, स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है. ये किससे अटैच होता है नीचे? मैंडिबल में कहाँ पे अटैच होता है ये पूछा हुआ है. सो इट इज़ अटैच टू लिंगुला. ये जो जगह जो अटैचमेंट हो रही है जहाँ पे, इट इज़ लिंगुला, जहाँ पे ये स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो अटैच होता है. स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अटैच्ड अबव टू द स्पाइन ऑफ द स्फीनॉइड एंड बिलो टू द लिंगुला एंड द लोअर मार्जिन ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन ऑफ द मैंडिबल. ठीक है. नेक्स्ट, आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल इज द ब्रांच ऑफ विच पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी? Artery of pterygoid canal is a branch of pterygopalatine part of the maxillary artery. Next, the mandibular nerve is largest nerve of 3 divisions of trigeminal nerve. ठीक है. Pick out the nerve branch from the posterior division of trigeminal nerve. देखो posterior division से हमारे पास निकलती है lingual nerve. ओके, देखो मेन ट्रंक आती है सबसे पहले हमारे पास, जिससे कि निकलती है meningeal branch and nerve to medial pterygoid. फिर anterior ट्रंक से हमारे पास निकलता है buccal nerve, mesenteric nerve, deep temporal, नर्व टू लेटरल टेरिगॉइड. ठीक है, बक्कल, मैसेट्रिक, डीप टेम्पोरल, नर्व टू लेटरल टेरिगॉइड. ये एंटीरियर ट्रंक से निकलती है. मेन ट्रंक कब आनी? मेनिंजियल और नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड गई. पोस्टीरियर ट्रंक से क्या क्या निकलता है? ऑरिकोटेम्पोरल, ऑरिकोटेम्पोरल के बाद लिंगुअल, लिंगुअल के बाद इंफीरियर एल्वियोलर. दीज आर फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. Next, in case of report of cancer of tongue, the patient complains of referred pain to the ear and temporal fossa. Cancer of tongue है, referred pain हो रही है to the ear and temporal fossa. This is because of involvement of what? This is because of involvement of auricotemporal branch of mandibular nerve. ठीक है, referred pain क्यों आ रही है या फिर पेन क्यों देखी जाती है जब कभी जब मैंडिबुलर नर्व में कोई भी दिक्कत आए या फिर टंग का कैंसर हो? This is in the patients because of the cancer, the pain radiates to ear and to the temporal fossa in the distribution of auricotemporal nerve. The pain is relieved by dividing the lingual nerve below and behind and the last molar tooth. ठीक है, लिंगुअल नर्व जहाँ पे डिवाइड कर रही थी वहाँ पे लास्ट मोलर टूथ के पास, वहाँ पे पेन को रिलीव करने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं. एट दिस साइड द नर्व इज इन कॉन्टैक्ट विद द मैंडिबल एंड आर कवर्ड विद ओनली म्यूकस मेम्ब्रेन सिमिलर टू पेन इन द टीथ. दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज रेफर्ड पेन इन द ईयर एंड टेम्पोरल रीजन. जो भी है, मतलब टंग का कैंसर हुआ, टंग के कैंसर से पीछे से नर्व जहाँ से जुड़ रही है वहाँ से ये सारी सेंसेशन ऊपर को जा रही है. ऑलराइट. नेक्स्ट, 38-year-old फीमेल अंडरगोज सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी फॉर मल्टीनोडुलर गॉइटर. सब टोटल मतलब पूरा नहीं निकाला लेकिन थोड़ा सा उससे कम, थोड़ा सा थायरॉइड छोड़ा हुआ है. पोस्ट ऑपरेटिवली शी वॉज एबल टू स्पीक नॉर्मली बट नाउ शी इज कंप्लेनिंग दैट हर वॉइस इज बिकमिंग मोनोटोनस एंड शी कैनॉट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड्स. विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड ड्यूरिंग द लाइगेशन ऑफ वेसल? तो इसमें एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व इज इंजर्ड ड्यूरिंग द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी लाइगेशन. ठीक है, उसकी वजह से ये अकर करता है. अब अगर हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई जो कर रही है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है अगर, ठीक है, तो जितने भी हमारे मसल्स हैं जैसे कि इंट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स, थायरो आरेटेनॉइड मसल्स और वोकैलिस मसल, ये सारे जो है वो अपना काम करना थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं. इसकी वजह से हॉर्सनेस इन द वॉइस हो जाती है एंड देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग अगर बायलेटरल इंजरी हो गई है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को. ठीक है, दूसरी बात आती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व के बारे में. इंटरनल लैरिंजियल नर्व सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करती है मेनली. इंटरनल लैरिंजियल नर्व इज प्रोवाइडिंग अ सेंसरी सप्लाई मेनली. ऑलराइट. नाउ इससे क्या होगा कि सेंसरी सप्लाई वोकल कॉर्ड्स को जा रही है, वोकल कॉर्ड्स जा रही है, तो इससे एस्पिरेशन हो सकता है, लेस सेंसेशन हो सकती है वोकल कॉर्ड्स में. वोकल कॉर्ड्स में सेंसेशन कम हो जाएंगी जिससे एस्पिरेशन और चोकिंग वाली दिक्कत इंटरनल लैरिंजियल नर्व की दिक्कत की वजह से आएगा. ठीक है, अगर सर्जरी में इंटरनल लैरिंजियल नर्व गई तो सेंसरी सप्लाई गई. ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व दैट इज क्रेनियल नर्व 9. अगर सेंसरी सप्लाई टू फेरिंग्स, पोस्टीरियर टंग एंड टेस्ट. ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हमारा फेरिंग से पोस्टीरियर
पार्ट ऑफ द टंग और उसके साथ टेस्ट भी कैरी करती है। तो उससे गैग रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा अगर 9 चली गई है तो, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व चली गई है तो गैग चला गया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग भी चली गई। ठीक है, मतलब अब खाना खाएगा तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा क्योंकि उसका नॉर्मल वो सारा मस्कुलेचर ही नहीं काम कर पा रहा है। ओके, सो देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज डैमेज्ड। फिर आती है बात हाइपोग्लॉसल नर्व के बारे में। हाइपोग्लॉसल नर्व इज क्लेनियल नर्व 12, हाइपोग्लॉसल इज 12। नाउ इट सप्लाइज द मसल्स ऑफ द टंग। अगर हाइपोग्लॉसल कट गई है हमारी, तो अगर यूनिलेटरल कटी है तो डेविएशन ऑफ द टंग हो जाएगी यूनिलेटरल, जिस साइड को हमारा नर्व गई हुई है उसी साइड को डेविएशन हो जाएगी। ऑलराइट, उसी साइड को, मतलब प्रोट्रूड जब करेगा तो जैसे मान लीजिए प्रोट्रूड क्या है, तो प्रोट्रूड उस साइड का नहीं कर पाएगा जिस साइड को जो नर्व की क्रेनियल नर्व 12 की जो सप्लाई है वो चली गई है। ठीक है, दूसरी साइड का प्रोट्रूड हो जाएगा। सो इट विल बी पीछे को खिंच जाएगी जहाँ से वो सेंसेशन नहीं ले पा रही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम ऑफ एक्टोपिक साइट्स ऑफ थायराइड, आइडेंटिफाई द साइट्स रिप्रेजेंटेड बाय 1। ठीक है, ये पूरा डायग्राम दे रखा है। डायग्राम वाले क्वेश्चन मुश्किल हैं, इनको बार बार करना पड़ेगा तभी आएंगे। ऑलराइट, सो आंसर में इसको दे रखा है, दिस इज अ लिंगुअल थायराइड। It's a thyroid swelling in the posterior third of the tongue at the foramen cecum. It is presenting as a rounded swelling. It may be present only in the existing thyroid tissue, which may cause dysphagia, speech impairment, respiratory obstruction, and hemorrhage. ठीक है, any disease which can occur in the normal thyroid can also occur in the lingual thyroid. That is nodularity, toxicity, and malignancy can also occur in the lingual thyroid के cases. ठीक है, तो ये हमारे पास the diagram was this like. ठीक है, बार बार करने पड़ेंगे। Next, the structure most closely related to Berry ligament, making it vulnerable during thyroid surgery is what? The structure most closely related to Berry's ligament, making it vulnerable during thyroid surgery is recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve lies in tracheoesophageal groove and passes close to the Berry's ligament, making it most commonly injured site of nerve during thyroidectomy. Alright, recurrent laryngeal nerve. Next, अगर इसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है तो इससे हमने अभी बात की थी कि हमारा जो है वो वॉइस जो है वो हॉर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर दोनों साइड का चला गया तो फिर अपना नॉर्मल फंक्शन करने में दिक्कत आ जाएगी, खाना निगल नहीं पाएगा पेशेंट। ठीक है, और नॉर्मली अगर एक साइड की गई तो हाई पिच साउंड नहीं निकाल पाएगा। ऑलराइट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एंड इफ देयर बायलेटरल इंजरी इज देयर इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल। ऑलराइट, खाना तो क्या, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगी। नेक्स्ट, द मोबिलिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द डीग्लूटिनेशन इज मेनली ड्यू टू इट्स इन्वेस्टमेंट बाय व्हाट फेशिया। मोबिलिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड जब हम डीग्लूटिनेट करते हैं, दैट इज ड्यू टू प्री ट्रेकियल फेशिया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्री ट्रेकियल फेशिया प्रेजेंट है, उसी की वजह से जब हम डीग्लूटिनेट कर रहे हैं तब मोबिलिटी ऑफ थायराइड रहती है। ठीक है, द थायराइड इज इंक्लोज्ड इन द प्री ट्रेकियल फेशिया विच इज अटैच्ड टू द लैरिंक्स एंड द ट्रेकिया, कॉजिंग द ग्लैंड टू मूव ऑन swallowing. नेक्स्ट, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन थायराइड डेवलपमेंट इज व्हाट? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थायराइड डेवलपमेंट क्या रहता है? सबसे पहले मीडियन एंडोडर्मल डाउन ग्रोथ होती है, मीडियल एंडोडर्मल डाउन ग्रोथ होती है। फिर कैनलाइजेशन ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट होता है। ठीक है, देयर विल बी अ कैनलाइजेशन टू फॉर्म द थायरोग्लॉसल डक्ट, एंड देन देयर विल बी अ डिसेंट। डिसेंट की वजह से बाइफर्केशन ऑफ थायराइड लोब्स हो जाएगा विद पार्ट फॉर्मिंग द पिरामिडल लोब। ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ थायराइड लोब्स विल बी देयर विद द पार्ट फॉर्मिंग द पिरामिडल लोब्स। Next question, a 70-year-old patient on her dental treatment visit had sudden fall. To prevent the tongue from falling back and obstructing her airway, what would be the best position that you will place the patient in? That is tonsils position. ठीक है, tonsils position में रखेंगे इसको। In unconscious patient, the tongue may fall back and obstruct the air passages. This can be prevented either by making the patient lie on one side with the head down, that is known as tonsillar position. एक साइड को head down करा के, ठीक है, दैट इज नोन एज टॉन्सिलर पोजीशन, ताकि टंग जो है वो ग्रेविटी की वजह से बाहर की तरफ रहे। ठीक है, दिस इज नोन एज टॉन्सिल पोजीशन। और बाय कीपिंग द टंग आउट मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ एनी फोर्सेप और एनी जो भी हम जैसे बिल्ली वगैरह लगाते हैं, फिर जो जीभ पकड़ के रखते हैं बाहर को, या चम्मच वगैरह, कोई भी चीज़ से रोक के रखनी है टंग को। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग विद प्रिजर्व्ड जनरल सेंसेशन इंडिकेट्स इंजरी टू व्हाट? जनरल सेंसेशन प्रेजेंट है उसको, लेकिन सिर्फ टेस्ट चला गया है, सिर्फ टेस्ट की सेंसेशन एंटीरियर 2/3 से चली गई है। सो इसमें दिक्कत आती है कॉर्डा टिम्पनाई नर्व्स की वजह से। द कॉर्डा टिम्पनाई इज द नर्व ऑफ टेस्ट फॉर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग except for the valid papillae. Next, a patient presents with deviation of tongue to the right side on protrusion following surgery in the submandibular region. The injured nerve is what? Protrude जब कर रहा है टंग को तो राइट साइड को डेविएट कर जा रही है, तो राइट हाइपोग्लॉसल नर्व इज डैमेज्ड।
ठीक है. The genioglossus is the only muscle of the tongue that protrudes the tongue forward. Genioglossus ही protrusion of the tongue करवाता है. ठीक है. It is used for testing the integrity of hypoglossal nerve. If the hypoglossal nerve of the right side is paralyzed, the tongue on protrusion will deviate towards the right side. ठीक है. A patient suffers from the Horner syndrome after neck trauma. Which structure was injured during the posterior to carotid sheath? ठीक है. मतलब ये जब नेक ट्रॉमा हुआ उसमें पोस्टीरियर टू कैरोटिड शीथ कौन सा स्ट्रक्चर आपका इंजर हो गया? सिंपैथेटिक चेन इंजर होगी. सिंपैथेटिक चेन लाइज पोस्टीरियर टू द कैरोटिड शीथ. अगर उसकी इंजरी हो जाती है तो इट विल लीड टू टॉसिस, मायोसिस एंड एनहाइड्रोसिस. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेक radical neck dissection, a U-shaped neurostructure is noted embedded on the anterior carotid sheath. It is what? During the radical neck dissection, a U-shaped neurostructure is noted embedded on the anterior carotid sheath. It is ansa cervicalis. ठीक है. क्लासिक क्या रहता है कि ansa cervicalis loop over the carotid sheath supplies the strap of muscles. Ansa cervicalis will loop over the carotid sheath and it will supply the strap muscles. Next, during ligation of the lingual artery, which sequence correctly describes the surgical exposure? सबसे पहले you will retract the hyoglossus laterally, ठीक है, and then artery will be there, ठीक है, artery will be deep to it, artery will be located deep to hyoglossus muscle. Okay, quick landmark क्या रहता है? lingual artery is equal to deep to hyoglossus. ठीक है, lingual artery deep to hyoglossus located होती है. Hyoglossus is retracted laterally to expose it. लिंगुअल आर्टरी को एक्सपोज करने के लिए हायोग्लॉसस को हम लेटरली रिट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक इमेज दे रखी है. ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन होता है इमेज बेस्ड वाले. नहीं आते तो मतलब 0 नंबर. इन दिस डाइसेक्शन विच वेसल इज मोस्ट एट द रिस्क व्हेन परफॉर्मिंग अ मिड लाइन जीनियोप्लास्टी ऑस्टियोटोमी. मिड लाइन जीनियोप्लास्टी ऑस्टियोटोमी अगर इसमें हम करेंगे तो हमारे पास सब मेंटल वेन जो है वो सिवर हो सकती है. सब मेंटल वेन लाइज सुपरफिशियली क्लोज टू द मैंडिबुलर लोअर बॉर्डर. Genioplasty cuts at the midline risk of the venous plexus that could lead to major bleeding. Facial artery lies deeper, hooked around the gland, and mylohyoid artery is higher. ठीक है, mylohyoid artery higher होती है इस लेवल से, facial artery deeper होती है बहुत ज़्यादा और hooked होती है around the gland, जो भी हमारा सबमैंडिबल ग्लैंड है. लेकिन सबमेंटल वेन जो है वो सुपरफिशियली लाई होती है, इसलिए उसमें जीनियोप्लास्टी के दौरान उसके कट होने का खतरा ज़्यादा रहता है. Next, a CT image showing bony canal medial to anterior clinoid process transmitting the optic nerve and ophthalmic artery. What is the canal? देखो क्या ट्रांसफ़र कर रही है? ऑप्टिक नर्व ट्रांसफ़र कर रही है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी ट्रांसफ़र कर रही है. ठीक है, बोनी कनाल है ये. दैट इज़ लाइंग एंटीरियर टू क्लिनॉइड प्रोसेस. इट इज़ नोन एज ऑप्टिक कनाल. क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक कनाल बोलते हैं. ठीक है, ये हमारे पास रेडियोग्राफ दे रखा है. ऑप्टिक कनाल आगे जैसे है. ठीक है, रेडियोग्राफ देख के पहली बारी में कुछ नहीं लगेगा पता, बट इसको बार बार देखना पड़ेगा. द ऑप्टिक कैनाल सिट्स मीडियल टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड कैरीज 2 स्ट्रक्चर्स, दैट इज द ऑप्टिक नर्व, दैट इज cranial nerve 2, and the ophthalmic artery. When you see that the combination is present on CT plus its position at the junction of the body and the lesser wing of the sphenoid, you are looking at the optical canal. Next, which one of the following foramina are located in the sphenoid bone? स्फीनॉइड बोन के अंदर फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम तीनों लोकेटेड होते हैं, लेकिन जुगुलर फोरामेन लोकेटेड नहीं होता. फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम तीनों लोकेटेड होंगे. द फोरामिना विच एक्चुअली लाई इन द स्फीनॉइड बोन आर फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल. ये दोनों ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड में लाई करते हैं. जुगुलर फोरामेन इज नॉट प्रेजेंट इन द स्फीनॉइड, इट इज प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल बोन्स. जुगुलर फोरामेन इज प्रेजेंट इन द गैप्स बिटवीन टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल बोन्स. फिर आता है फोरामेन स्पाइनोसम. फोरामेन स्पाइनोसम इज अगेन प्रेजेंट इन द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड bone. Next, all of the following are true about glossopharyngeal nerve except what? क्या क्या चीज़ें ट्रू रहती हैं? Glossopharyngeal nerve supplies to the carotid sinus. It is the pharyngeal branch taking part in the formation of pharyngeal plexus. ठीक है, इट हैज़ स्पेशल विसरा एफरेंट फाइबर्स विच सप्लाई द स्टाइलोफेरेंजिस. ये तीनों चीज़ें जो है वो ट्रू हैं अबाउट द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. गलत स्टेटमेंट क्या है कि द टिम्पैनिक नर्व इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. ये गलत स्टेटमेंट है हमारे पास दी हुई. ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या है इसका? द टिम्पैनिक नर्व इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. इट एंटर्स द मिडल ईयर थ्रू द टिम्पैनिक कैनालिकुलस, टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टिम्पैनिक प्लेक्सस इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स फाइबर्स टू द मिडल ईयर एंड द ऑडिटरी ट्यूब एंड द मैस्टॉइड एंट्रम एंड द एयर सेल्स. ठीक है, टिम्पैनिक नर्व जो है वो ब्रांच है इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व.
इन्होंने हमारे पास ऊपर में आंसर में दिया था, क्योंकि गलत क्यों था कि वहाँ पे लिखा था सुपीरियर गैंग्लियन, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. नेक्स्ट, Scarpa ganglion is related to what? Scarpa ganglion is related to vestibulocochlear nerve. ठीक है, वेस्टिबुलर गैंग्लियन या फिर इसको स्कारपास गैंग्लियन भी बोलते हैं, ये वेस्टिबुलर नर्व का पार्ट होता है. इट्स लोकेटेड ऑन टू द वेस्टिबुलर नर्व एंड इज द इन द लेटरल पार्ट ऑफ द इंटरनल acoustic meatus it is located. Next, the following are true about lesser petrosal nerve except what? ठीक है, ये सभी ट्रू स्टेटमेंट्स है, जैसे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, इट एग्जिट्स बाय foramen ovale, इट कैरीज प्री गैंग्लियनिक secretory nerve fibers फ्रॉम द टू द पैरोटिड ग्लैंड. चौथा ऑप्शन जो गलत लिखा है वो लिखा है कि इट कंबाइंस विद डीप पेट्रोजल टू फॉर्म वीडियन नर्व. ठीक है, लेकिन ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है वो कंबाइन करती है, लेसर पेट्रोजल नर्व कंबाइन नहीं करती वीडियन नर्व बनाने के लिए, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व कंबाइन करती है. दैट इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व विच जॉइंस द डीप पेट्रोजल नर्व टू फॉर्म द टेरिगोइड कैनाल और द वीडियन नर्व. ठीक है, तो ये चौथी स्टेटमेंट इसीलिए हमारी गलत होती है, क्योंकि हम ऊपर बात कर रहे हैं लेसर पेट्रोजल नर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. नेक्स्ट, द पेशेंट विद इंजरी टू द राइट ऑप्टिक ट्रैक लीड्स टू व्हाट? राइट ऑप्टिक ट्रैक को इंजरी हुई है तो क्या होगा? इट विल लेफ्ट हाइपोनिमस हेमीएनोपिया हो जाएगा उसको. अ लीजन ऑन द राइट ऑप्टिक ट्रैक लीड्स टू लेफ्ट होमोनिमस हेमीएनोपिया, दैट इज लेफ्ट हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन विल बी गॉन. ऑलराइट, नेक्स्ट, the level of injury in the facial nerve is circled in red. All of the following functions are affected if the nerve is injured at this level except what? देखो, ये डायग्राम दे रखा है और इस लेवल पे इंजरी बताई हुई है, कौन सा लेवल है मुझे भी नहीं मालूम. ठीक है, बट इसमें सलाइवरी सिक्रीशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड जो होगी वो रुक जाएगी यहाँ पे. ऑलराइट, सलाइवरी सिक्रीशन टू द पैरोटिड ग्लैंड विल बी स्टॉप्ड. सबसे पहले इंटरनल ऑडिटरी मीटस आता है, फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन आता है, फिर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व आती है, उसी के साथ निकल रही होती है, फिर जो मेन ट्रक है वही नर्व टू स्टेपिडियस जाती है. ठीक है, उसके बाद आती है नर्व टू कॉर्डा टिम्पनाई साइड ब्रांच, फिर आती है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन नर्व. ठीक है, फिर उससे निकलती है टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल. ओके, तो इसको करना पड़ेगा. secretomotor fibers for parotid gland is not from the facial nerve. Next, a patient with following presentation of the facial nerve injury with the shown paralysis given in the image in the shaded area. Identify the side and level of the lesion. देखो, पहले तो ये जो लीजन होगा ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में पूरी साइड ही चली जाती है. ठीक है, नाउ इट इज़ लेफ्ट अपर मोटर न्यूरॉन, तभी वो राइट साइड का, क्योंकि कॉन्ट्रालेटर चला जाएगा, लेफ्ट अपर मोटर न्यूरॉन चला गया तो राइट साइड का कॉन्ट्रालेटरल हाफ जो है वो हमारा सुन हो जाएगा. द सुप्रान्यूक्लियर लीजन स्पेयर्स द अपर पार्ट ऑफ द फेस बिकॉज न्यूक्लियर फाइबर्स सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द फेस आर इनर्वेटेड बाय कॉर्टिको-न्यूक्लियर फाइबर्स ऑफ बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. इन द सुप्रान्यूक्लियर रीजन ओनली लोअर हाफ ऑफ द फेस ऑन द ऑपोजिट साइड इज पैरालाइज. अगर सारे इंफ्रान्यूक्लियर लीजन्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो होल ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड ऑन द सेम साइड. ठीक है, नेक्स्ट, अ पेशेंट with increased intracranial tension presenting with medial squint and diplopia. Increased intracranial tension है, medial squint और diplopia हो गया है. Which of the following cranial nerves involvement results in these clinical features? अगर हमारा एब्ड्यूसेंस नर्व इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीज कर जाती है, प्लस देयर इज अ मीडियल स्क्विंट विद डिप्लोपिया. ठीक है, इन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एब्ड्यूसेंस नर्व गेट कंप्रेस्ड रिजल्टिंग इन मीडियल स्क्विंट एंड डिप्लोपिया. Sixth, nerve paralysis is one of the commonest false localizing signs in case of raised intracranial pressure. Its susceptibility to such damage is due to long course of the cisterna pointis, to its sharp bend over the superior border of the petrosal temporal bone and downward shift of the brainstem towards the foramen magnum, resulting in the medial squint and diplopia. Next, the patient with ptosis, dilated pupil, downward and outward displacement of the eye wall is reported to neurologist. The clinician can suspect which cranial nerve involvement with the presenting features. इसमें क्या रहे, ऐसी सी इमेज हो रखी है. ठीक है, now there is a wrinkled forehead, raised eyebrows, drooping eyelid, dilated pupil, downward abducted eye. It is a function of oculomotor nerve. Complete and total paralysis of the third nerve results in ptosis, that is drooping of the upper eyelid, lateral squinting हो जाती है, dilation of the pupil हो जाती है, loss of accommodation हो जाता है, slight proptosis हो जाएगी, that is forward projection of the eye, and along with that there will be diplopia or double vision. Next, which of the following structures is related to the apex of the parotid gland? Apex of parotid gland के साथ cervical branch of the facial nerve is associated. ठीक है, apex of parotid gland it projects downwards overlapping the posterior belly of digastric muscle and adjoining part of the carotid triangle.
The structures emerging through the apex of the parotid gland are cervical branch of the facial nerve, anterior and posterior divisions of retromandibular veins. Okay. Next, identify the nerve arrangement shown below. A type of arrangement is also seen in what? देखो इसमें टेम्पोरोफेशियल ट्रंक दे रखी है, जिसमें टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, अपर लोअर बक्कल ब्रांचेस दे रखी हैं, उसके बाद मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल ब्रांच दे रखी है. मेन ट्रंक इज फ्रॉम द फेशियल नर्व ट्रंक, ठीक है, जो कि नीचे को आ रही है. जो टेम्पोरल और जाइगोमैटिक को छोड़ के बाकी जितनी भी ब्रांचेस आई वो सब हमारी सर्वाइकोफेशियल ट्रंक की होती है. ऑलराइट, इसमें जो अलाइनमेंट है, दिस इज शोइंग द alignment for the knee. Okay, the 5 terminal branches of the facial nerve radiated like a goose foot through an anterior border of the parotid gland and supply the muscles of the facial expression. Such branching pattern of the facial nerve is known as pes anserinus. Anserinus, ठीक है, pes anserinus बोलते हैं इसको. At the medial side of the knee, the pes anserinus tendons are arranged in the form of anterior posterior as SAG, that is sartorius, gracilis and semitendinous. ठीक है, मतलब ये इन मसल्स की तरह ये अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको नी वाला ये जो नाम है वो दिया गया है. दैट इज नोन एज द नी. इन नर्व्स के अरेंजमेंट को द नी बोलते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं पहले. द पैरोटिड ग्लैंड इज एक्टोडर्मल एरोरीजन. Canalization of the parotid bud forms the ductal system of the gland. Parotid gland is the only major gland that develops from the ectoderm. Parotid gland सिर्फ एक major gland है जो कि ectoderm से develop करता है. Alright. गलत statement क्या है कि parotid का primordium जो है that develops during 12th week of intrauterine life. Alright. ये गलत statement दे रखी है. Alright. जितने भी salivary glands होते हैं वो arise करते हैं from the proliferation of the oral epithelium. Out of the 3 pairs of large salivary glands, only parotid gland developed from the ectoderm. ठीक है, प्रीमोडियम से डेवलप नहीं करता, इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म. अदर्स जैसे कि सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, वो डेवलप करते हैं एंडोडर्म से. नेक्स्ट, ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ लिंगुअल आर्टरी एक्सेप्ट व्हाट? लिंगुअल आर्टरी की 3 ब्रांचेस, सुप्राहायोइड, डॉर्सल लिंगुअल, सबलिंगुअल. ठीक है, सुप्राहायोइड, डॉर्सल लिंगुअल, सबलिंगुअल और डीप लिंगुअल, ये ब्रांचेस होती है. इंफ्राहायोइड ब्रांच नहीं होती है. राइट, इंफ्राहायोइड ब्रांच नहीं होती इसकी. नेक्स्ट, अ पेशेंट रिपोर्ट्स विद कंप्लेन ऑफ रिकरेंट पेरिकोरोनाइटिस ड्यू टू द इम्पैक्टेड 4-8. OPG reveals more than half of the tooth is in the ramal bone. The tooth is situated below the CEGF of 4-7. What would be the classification of this tooth according to Pell and Grigori classification? It is class 3 position C. ठीक है, क्लास 3 पोजीशन सी. हमने पहले भी बात की थी कि क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं. क्लास का हमारा रहता है कि बोन की कितना अंदर जो है वो दांत प्रेजेंट है. ऑलराइट, कि कितना बोन के अंदर को रेमस में कितना प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज क्लास. और पोजीशन का मतलब है कितना डीप प्रेजेंट है वो. ठीक है, इज इट एट द लेवल ऑफ ऑक्लूजन, इट इज एट द बिलो द लेवल ऑफ ऑक्लूजन, या फिर वो ऑक्लूजन से भी नीचे, जो दांत का दूसरे दांत का सर्वा सीजे उससे भी नीचे पहुंच चुके हैं. दैट इज पेल एंड ग्रिगोरी. नेक्स्ट, एज पर द पेरेंट स्केल, a level 4 indicates what? As per the parent scale, PARANT scale, it is known as extraction with root sectioning. लेवल 4 का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन विद रूट सेक्शनिंग. जो पेरेंट स्केल होता है उसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं. फर्स्ट इज इजी लेवल 1, मतलब एक्सट्रैक्शन जिसमें कि सिर्फ आपको फोर्सेप्स रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज इजी लेवल 1. फिर आता है लेवल 2, एक्सट्रैक्शन रिक्वायरिंग ऑस्टियोटोमी, ऐसी एक्सट्रैक्शन जिसमें ऑस्टियोटोमी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज लेवल 2. फिर आता है लेवल 3, दैट इज एक्सट्रैक्शन रिक्वायरिंग ऑस्टियोटोमी एंड कॉर्नल सेक्शन. ऑस्टियोटोमी और कॉर्नल सेक्शन रिक्वायर्ड रहता है लेवल 3 में. फिर लेवल 4 आता है, दैट इज कम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शंस इंक्लूडिंग रूट सेक्शनिंग. ठीक है, थर्ड में हमारे पास ऑस्टियोटोमी के साथ कॉर्नल रिसेक्शन रहती है. फोर्थ में हमारे पास रूट रिसेक्शन भी करनी पड़ती है. लेवल 2 में हमारे पास सिर्फ ऑस्टियोटोमी करनी पड़ रही है, मतलब ऊपर की बोन को म्यूटिलेट कर रहे हैं थोड़ा सा. और लेवल 1 में है सिर्फ एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स से ही हमारा दांत बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट, प्राइमरी इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी इज सीन इन व्हाट? प्राइमरी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी इज सीन इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कब इंक्रीज करती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केसेस में. नेक्स्ट, LMX फॉर्मली नोन एज ELA max इज प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? LMX that is formerly known as ELA max is a preparation of lidocaine encapsulated liposomes. क्या होते हैं? lidocaine encapsulated liposomes. Next, FDA category for the use of LA during pregnancy is C for all except what? FDA category of use of LA during pregnancy is C for all. जैसे आर्टिकेन, बुपिविकेन, मैपिविकेन, इनको C कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन लिडोकेन इनकी कैटेगरी में नहीं आता है FDA की
कैटेगरीज के हिसाब से। नेक्स्ट लिपिड सॉल्युबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर व्हाट? लिपिड सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट आपकी बुपिविकेन के लिए होती है। हाईएस्ट लिपिड सॉल्युबिलिटी इज फॉर द बुपिविकेन। नेक्स्ट पीकेए इज हाईएस्ट फॉर व्हाट? पीकेए वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर प्रोकेन। पीकेए हाईएस्ट फॉर प्रोकेन। नेक्स्ट क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन? क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिलो द एज ऑफ 5 years। 5 साल से छोटे बच्चे में आप क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी नहीं करोगे। नेक्स्ट LET used for scalp lacerations. In laceration is in children mostly consisting of all except what? देखो laceration अगर चिल्ड्रन में हुई तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? आप यूज़ करोगे 2.3% टेट्रासाइक्लिन, ऑलराइट। उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे। 4% लिडोकेन यूज़ नहीं करोगे, 0.1% एपिनेफ्रिन यूज़ नहीं करोगे स्कैल्प लैसेरेशन के लिए। 0.5% एट्राकेन यूज़ नहीं करोगे, यू विल गो फॉर 2.3% टेट्रासाइक्लिन। Next, sodium bicarbonate when given with local anesthetic has which of the following effect? सोडियम बाइकार्बोनेट जब वो लोकल एनेस्थेटिक के साथ दिया जाता है तो इसमें वो रैपिडली इंक्रीज कर देता है एक्शन को। इट इंक्रीजेज द रैपिडिटी ऑफ द एक्शन, ऑलराइट। सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन गिवन विद द लोकल एनेस्थेटिक्स इट रैपिडली इंक्रीजेज द एक्शन। नेक्स्ट, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विद हाई लोकल टिश्यू रिटेंसी इज व्हाट? हाई लोकल टिश्यू रिटेंसी आपकी बुपिविकेन की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, इफ बाय एक्सीडेंट LA gets injected into the blood vessel with adrenaline, what will happen? It will cause hypertension and tachycardia. ये adrenaline का पार्ट करेगा और LA अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो शो करेगा। नेक्स्ट, नुक्कल एनेस्थेटिक विद लोएस्ट प्लेसेंटल ट्रांसफर रेट इज व्हाट? सबसे कम लोएस्ट प्लेसेंटल ट्रांसफर रेट किस लोकल एनेस्थेटिक का होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, लिग्नोकेन, बुपिविकेन, मेबिविकेन और क्लोरप्रोकेन। तो क्लोरप्रोकेन का सबसे कम लोकल प्लेसेंटल ट्रांसफर रेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टिप डिफ्लेक्शन ऑफ कन्वेंशनल 27 गॉज नीडल इज हाउ मच? मैक्सिमम टिप डिफ्लेक्शन ऑफ 27 गॉज नीडल इज 8.4 मिलीमीटर। इससे ज़्यादा टिप की डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टिप डिफ्लेक्शन इज ओनली 8.4 मिलीमीटर्स ऑफ 27 गेज नीडल। नेक्स्ट, पेरी प्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? पेरी प्रेस एक प्रेशर सिरिंज होती है, ऑलराइट। पेरी प्रेस हाई पिस्टल साइज प्रेशर सिरिंज है यूज इन इंट्रालिगामेंट्री एनेस्थीसिया, ठीक है। इसको पेरी प्रेस स्पेल भी किया जाता है अलग अलग, ठीक है। इट्स अ पेरियोडोंटल लिगामेंट इंजेक्शन। द ओनली सेंसरी ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व इज व्हाट? ओनली सेंसरी ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व इज बक्कल, ओके। नेक्स्ट, व्हेनेवर एंट्रल पंचर इज टू बी कैरिड आउट द पंचर इनटू द साइनस कैविटी शुड बी मेड थ्रू डैश इन चिल्ड्रन। अगर एंट्रल पंचर हम कैरी आउट कर रहे हैं तो पंचर इनटू द साइनस कैविटी शुड बी मेड थ्रू मिडल मीटस इन चिल्ड्रन। मिडल मीटस के थ्रू करना होता है। Next, according to biological site and mode of action, most clinically useful local anesthetic agents are classified under which class? Biological site और mode of action के हिसाब से ज़्यादातर clinically useful LA जो होते हैं वो classify किए जाते हैं as class D. Next, epinephrine has predominant effect on what? Epinephrine का predominant effect होता है on beta adrenergic receptors के ऊपर, ठीक है। It has a जो भी इसका effect है predominant effect on beta adrenergic receptors. Next, the local anesthetics act as anti-arrhythmic agents at a dosage of how much? Local anesthetic act करते हैं as a anti-arrhythmic agent at a dosage of 1.5 to 5 microgram per ml। 1.5 से 5 microgram per ml की अगर डोजेज हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है तो इससे ज़्यादा तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। इस डोजेज में 1.5 से 5 माइक्रोग्राम पर ml में इट विल बी कॉजिंग एंटी-arrhythmic एक्शन। एंटी-arrhythmic एक्शन, ठीक है। मतलब ये एंटी एरिथमिया काम करेगा, ए रिदम को ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन वैसा ही कुछ है। नेक्स्ट, आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ 27 गॉज नीडल इज हाउ मच मिलीमीटर्स? आउटर डायमीटर जो होता है वो 0.41 मिलीमीटर्स का होता है। आउटर डायमीटर इज ऑफ 0.41 मिलीमीटर्स एंड इनर डायमीटर इज ऑफ 0.20 मिलीमीटर्स, ठीक है। आउटर डायमीटर 0.41 एंड इनर डायमीटर इज ऑफ 0.20 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ प्लेन लिडोकेन सॉल्यूशन इज हाउ मच? प्लेन लिडोकेन सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, उसकी पीएच कितनी होगी? द आंसर इज 6.5 विल बी द पीएच। नेक्स्ट, ऑर्थोटाउलिडीन इज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक? ऑर्थोटाउलिडीन इट इज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रिलोकेन, ठीक है। ऑर्थोटाउलिडीन मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है प्रिलोकेन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पासिस बिटवीन 2 हेड्स ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल? 2 हेड्स ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल के बीच से हमारी लॉन्ग बक्कल जाती है। 2 हेड्स ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड के बीच से हमारी लॉन्ग बक्कल जाती है, लॉन्ग बक्कल नर्व विल गो। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एपिथेलियल सिस्ट एक्सेप्ट व्हाट? देखो, प्रीमोडियल सिस्ट एपिथेलियल सिस्ट, डेंटिजरस सिस्ट इज एन एपिथेलियल सिस्ट, रेजिडुअल सिस्ट एंड एपिथेलियल सिस्ट। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट एपिथेलियल सिस्ट नहीं होती, ठीक है। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट इट
forms by pooling. It's a empty cyst kind of thing. All right, aneurysmal bone cyst. Next, superior border of the lateral pharyngeal space is related to what? The superior border of the lateral pharyngeal space, also called as the parapharyngeal space, is known as base of the skull. What is it known as? Base of the skull. Specifically, the inferior border of the temporal bone and the spine of the sphenoid bone, it is really located at around the base of the skull. ठीक है, जो कि base of skull बना रहे हैं खुद, that is the superior border touching the lateral pharyngeal space forming the skull base. Next, among the following, which stage of anesthesia describes the level of conscious sedation? देखो 4 स्टेजेस होती है हमारे पास, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 प्लेन 1, स्टेज 3 प्लेन 2, ठीक है, और स्टेज 4 में हमारा वो चला जाता है परे साइड. तो स्टेज 1 इज नोन एज कॉन्शियस सेडेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट, फ्लोर ऑफ टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? Floor of the pterygomandibular space, it is formed by the pterygomasseteric sling. ठीक है, the masseter and the medial pterygoid together form a U-shaped sling around the inferior border of the mandible, and the two muscles elevate and forcibly close the jaw. ठीक है, next, adrenaline is added to local anesthetic agent because it does what? Adrenaline क्या करवा देता है? Adrenaline पहली चीज करवाता है vasoconstriction. ठीक, दूसरी चीज करवाता है decreases the rate of absorption of the local anesthetic at the site of इंजेक्शन, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक एट द साइट ऑफ इंजेक्शन ज़्यादा टाइम तक रहता है, डिफ्यूजन नहीं करवाने होने देता इसकी. नेक्स्ट, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस में क्या रहता है हमारे पास? तो पैरोटिड ग्लैंड होता है. पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस कंटेन्स द पैरोटिड ग्लैंड. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम द लेफ्ट फोर्थ ऑर्टिक आर्च इज व्हाट? लेफ्ट फोर्थ ऑर्टिक आर्च से जो हमारा स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज आर्च ऑफ ऑर्टा. ठीक है, आर्च ऑफ ऑर्टा हमारा लेफ्ट फोर्थ ऑर्टिक आर्च से निकलता है. नेक्स्ट, ड्रूप्ड शोल्डर्स अकर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ व्हाट? ड्रूप्ड शोल्डर्स जो होते हैं वो पैरालिसिस ऑफ ट्रेपीजियस की वजह से होते हैं. अगर एकदम शोल्डर ड्रूप कर जाएंगे तो दिस ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ ट्रेपीजियस. ऑलराइट, एक्शन ऑफ ट्रेपीजियस इज एलिवेशन ऑफ स्कैपुला along with the levator scapula. Okay, now overhead abduction along with the serrator anterior, ये भी इसका एक्शन रहता है. It retracts the scapula along with the rhomboids. Now, which of the following has single ossification center only? Carpals जो होते हैं उनका single ossification center रहता है. Carpals having single ossification center. Next, thoracic ducts open into what? Thoracic duct कहाँ open करती है? Thoracic duct will open into left brachiocephalic vein. Thoracic duct opens into the left venous jugulo-clavian angle at the beginning of left brachiocephalic vein. Next, a completely edentulous patient visits you for the new denture. Seeing his ridge condition, alveotomy was planned with an instrument shown in the image. It was preferred that it has a double spring action. Bone cuts rapidly with this instrument without much effort. What is it? ये आपको इंस्ट्रूमेंट की फोटो दे रखी है. ऑलराइट, नाउ पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज दिस. ठीक है, सो वैसे तो एक हिसाब का रॉन्जर ही है ये, बट इट इज जेंसन मिडल्टन बोन रॉन्जर. जेंसन मिडल्टन बोन रॉन्जर है ये. चारों हमारे को रॉन्जर के ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लू बोन रॉन्जर, टिप कटिंग रॉन्जर, लेकिन इसका नाम जो है जेंसन मिडल्टन बोन रॉन्जर है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अरमानी क्लासिफिकेशन, maxillectomy of posterior maxilla bilaterally, anterior posterior resection will be under which class? anterior posterior पूरा निकाल दिया. ठीक है, maxillectomy हो चुकी है posterior maxilla की bilaterally. Now it will be coming under class 5. Next, which of the following is to be administered in the patient whose bleeding does not stop post extraction of third molar despite of using local measures? तो हमें उसमें ट्रांसएग्जामिक एसिड देना पड़ता है. लोकल मेजर जैसे हमने एड्रेनलिन दे दिया, प्रेशर पैक दे दिया, ठीक है, जो कॉटन रख के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया हमने. ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं रुक रही है, देन वी विल गो फॉर ट्रांसएग्जामिक एसिड पैचेस और इंजेक्शन एट द लोकल साइट ऑफ जहाँ से हमने दांत निकाले. नेक्स्ट, नॉट अ ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी इज व्हाट? थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच कौन नहीं है? सुप्रा ऑर्बिटल नहीं है. सुप्रा ऑर्बिटल ऑप्थेल्मिक की आ जाती है. स्पिनोपैलेटाइन है, इंफ्रा ऑर्बिटल है, लेसर पैलेटाइन है. स्पिनोपैलेटाइन, infraorbital and lesser palatine are the branches of third part of maxillary artery. ठीक है, but supraorbital is not. Next, in a road traffic accident, the area of pterion is impacted and there is an extradural hemorrhage with a clot leading to paralysis of opposite side. Which artery would have been ruptured in this case? तो यहाँ पे anterior branch of the middle meningeal artery जो है वो टीरियन के साथ रन कर रही होती है. anterior branch of the middle meningeal artery टीरियन के साथ रन कर रही होती है. ठीक है, इट इज़ वनरेबल टू द इंजरी एट दिस पॉइंट वेयर द स्कल इज वेरी थिन.
So rupture of the artery may give rise to any epidural hematoma that could be there. Okay, now जिसकी वजह से हमारा पैरालिसिस हो सकता है और ऑपोजिट साइड का पैरालिसिस होगा बॉडी में. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज व्हाट? सबसे बड़ी कौन सी ब्रांच होती है मैंडिबुलर डिवीजन की? आंसर इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. नेक्स्ट, ग्यूरिन टाइप फ्रैक्चर इज सेम फ्रैक्चर एज व्हाट? ग्यूरिन टाइप फ्रैक्चर जो होता है वो सेम फ्रैक्चर होता है एज लिफॉर्ट वन फ्रैक्चर. ग्यूरिन टाइप फ्रैक्चर इज द सेम फ्रैक्चर एज लिफॉर्ट वन फ्रैक्चर. नेक्स्ट, आपको एक इमेज दे रखी है, दोनों हम उंगलियों से उसको पैल्पेट करके, जो हमारी इमेज है उसमें आँख को पैल्पेट करके दूर दूर खींच रहे हैं. व्हाट इज दिस टेस्ट? दिस इज बॉ स्ट्रिंग टेस्ट. क्या बोलते हैं इसको? बाउ स्ट्रिंग टेस्ट. इसमें लेड इज पुल्ड लेटरली विद टेंडन एरिया इज पैल्पेटेड टू डिटेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स ऑफ द टेंडन. ठीक है, अ लैक ऑफ रेजिस्टेंस और मूवमेंट और लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग बोन इज इंडिकेटिव ऑफ द फ्रैक्चर. ठीक है, जैसे भी बोन मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही है, एक साइड की मूव कर रही है, एक साइड की मूव नहीं कर रही है, इसका फ्रेगमेंट जो है वो टूटा हुआ है, तो वो चीज़ शो करती है कि हमारे पास अंडरलाइंग फ्रैक्चर प्रेजेंट है. ऑलराइट, सो दिस इज बाय द बाउ स्ट्रिंग टेस्ट, BOWSTRING टेस्ट.